Hello students, now we are doing our second worksheet of linear programming problem. But before this, if you haven't understood your first worksheet, then go through it. Now what are the requirements of linear programming problems? There must be a well-defined objective function, constraints, alternative course of action, decision variables should be interrelated or non-negative, and the resources must be limited in a supply. These are the requirements which we have already discussed in our first video. Now, different types of linear programming problems. Very first, that is the manufacturing problem, diet problem, and transportation problem that we will discuss in this video. Very first, that is the diet problem. Keep your pen and notebook with you. Take it please. A dietitian wishes to mix two types of foods in such a way that vitamin contents of the mixture contain at least 8 units of vitamin A and 10 units of vitamin C. Food 1 contains 2 units or kg of vitamin A and 1 unit of vitamin C. Food 2 contains 1 unit of vitamin A and 2 unit of vitamin C. It costs rupees 50 per kg to purchase food 1 and 70 per kg to purchase food 2. Formulate this problem as a linear programming problem to minimize the cost of such a mixture. Now, keep your pen and notebook ready. First of all, we have to make a table. Because there are two types of foods, food 1 and food 2. और टू टाइप्स के विटामिन है, विटामिन ए एंड विटामिन सी. सो मार्क अ 2x2 टेबल लाइक दिस. सो फूड 1 consider as x and food 2 consider as y. Now vitamin A. A food 1 contains, come to the question, food 1 contains 2 units of vitamin A and 1 unit of vitamin C. So we have written here 2 units of vitamin A and 1 unit of vitamin C. While food 2 contains 1 unit of vitamin A and 2 unit of vitamin C. 1 unit of vitamin A and 2 unit of vitamin C. It cost 50 rupees per kg to purchase food 1. तो फूड 1 के लिए 50 रुपीज एंड फूड 2 के लिए 70 रुपीज. And very first line, a dietitian wishes to mix two types of food in such a way that the vitamin content of the mixture contain at least 8 units. यहाँ ध्यान रखना है हमें कि at least दिया हुआ है या at most दिया हुआ है. At least means to say कम से कम, at most means to say ज़्यादा से ज़्यादा. जब कम से कम दिया हुआ है दैट मीन्स उससे ज्यादा हम यूज कर सकते हैं. तो यहाँ एट लीस्ट 8 यूनिट्स हो गया ऑफ विटामिन ए एंड हेयर 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी. सो फॉर्मुलेट दीज कंस्ट्रेंट्स. देखो 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई. दिस इज, तो विटामिन ए कम से कम कितने हैं, 8 यूनिट्स, यानी उससे ज्यादा हम यूज कर सकते हैं. सो 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8. राइट इट ऑन योर नोटबुक्स प्लीज. नेक्स्ट विटामिन सी, 1x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10. बिकॉज दोनों जगह हमारे पास एट लिस्ट है. जब एट लिस्ट है दैट मीन्स कम से कम, तो उससे ज्यादा हम यूज कर सकते हैं. नाउ कॉस्ट, हम चाहेंगे कि हमें ये कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम देनी पड़े दोनों फूड्स के लिए. तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ मिनिमाइज z, दिस इज इक्वल्स टू 50x प्लस 70y. अब फूड क्वांटिटी है
तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती। वैसे भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हमने यहाँ रिक्वायरमेंट्स में ही किया है कि जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं दैट इज एक्स एंड वाई आर इंटर रिलेटेड एंड नॉन नेगेटिव। सो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, यानी एक्स भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड वाई ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. So we have formulated this as 2x plus y is greater than or equals to 8 and x plus 2y is greater than or equals to 10. So minimize of z, this is equals to 50x plus 70y, and non-negative restriction, x is greater than or equals to 0, y is greater than or equals to 0. Now pause this video and make a graph of this. Now you have seen that your graph is of this type. This one. So your corner points are A, B and this is C. That means this region, unbounded region. तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले आप फर्स्ट वीडियो देखो। अगर उसमें भी आपको ग्राफ्स अभी ड्रॉ करने नहीं आते तो पहले 9th और 10th क्लास में जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर है उसके थ्रू आप ग्राफ बनाना सीखें। सो दिस इज अनबाउंडेड रीजन एंड इट्स कॉर्नर पॉइंट्स आर 0, 8, B है आपके पास 2, 4 एंड C है आपके पास 10, 0। तो हमने क्या किया, उन कॉर्नर पॉइंट्स को Z में पुट किया। दिस इज 560, 380 एंड 500। सो व्हाट इज मिनिमम हियर, दैट इज 380, दैट मीन्स 2, 4। अब हमने चेक करना है कि क्या यही इसका मिनिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि 50x प्लस 70y सपोज करेंगे कि इससे लेस भी हमारे पास कोई ना कोई मिनिमम सॉल्यूशन है, यानी 50x प्लस 70y इज लेस देन 380। तो उसकी हेल्प से हमने ये डॉटेड ग्राफ बना लिया। इस डॉटेड ग्राफ में अब हमने वहां पे 0, 0 पुट करना है x और y के प्लेस पे। x और y के प्लेस पे हमने 0, 0 पुट किया, यानी 0 प्लस 0 इज लेस देन 380। रिजल्ट इज ट्रू। सो शेडेड एरिया इज अलोंग द ओरिजन। अब ये ओरिजन वाली साइड आ गया, जबकि हमारा जो पहले फिजिबल रीजन था वो ये था। कोई भी दोनों के अंदर पॉइंट कॉमन नहीं है। अगर कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो तो जो हमने पहले सॉल्यूशन लिया था 380 वही इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। लाइक दिस, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है फिजिबल रीजन और जो इस रीजन का, सो 380 इज इट्स मिनिमल सॉल्यूशन। दैट मीन्स वी हैव टू मिक्स 2 kg ऑफ फूड 1 एंड 4 kg ऑफ फूड सेकेंड। विथ दिस स्ट्रेटेजी मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, ₹380। Now, second example, allocation problem. A cooperative society of farmers has 50 hectare of land to grow 2 crops X and Y. तो 2 टाइप्स की क्रॉप्स हैं X एंड Y, और एक लैंड के ऊपर दोनों ही तरह की क्रॉप्स आपने ग्रो करनी है। द प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप्स X एंड Y per hectare are estimated as ₹10500 and 9000 respectively. To control weeds, a liquid herbicide has to be used for crop X and Y at the rate of 20 liters and 10 liters per hectare. That means X land के लिए, X crop के लिए 20 लीटर और Y crop के लिए 10 liters. Further, no more than 800 liters of herbicides should be used in order to protect fish and wildlife using a pond which collects drainage from this land.
यानी 800 लीटर से आप ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड टू ईच क्रॉप, तो कितनी कितनी लैंड हमने एलोकेट करनी है सो एज टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द सोसाइटी। इज दिस ओके? 2 टाइप्स की क्रॉप्स हैं, तो पहले दोनों क्रॉप्स को उगाने के लिए हमारे पास लैंड कितनी है? 50 हेक्टेयर्स। इज दिस ओके? दैट मीन्स अगर हम 1 पोर्शन भी कहें तो भी हम कहें कि 1x + 1y, अब 50 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड तो हम यूज नहीं कर सकते। दैट मीन्स दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू 50। नाउ प्रॉफिट पर हेक्टेयर ऑन क्रॉप एक्स, एक्स के लिए कितना प्रॉफिट है? 10,500। वाई के लिए कितना प्रॉफिट है? 9,000। तो क्रॉप एक्स के लिए हम एक्स यूज कर रहे हैं और वाई के लिए हम वाई यूज कर रहे हैं। देयरफॉर टोटल प्रॉफिट इज 10,500 एक्स प्लस 9,000 वाई। इज दिस ओके? नाउ कंस्ट्रेंट्स, वेरी फर्स्ट कंस्ट्रेंट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि 50 हेक्टेयर लैंड है, दैट मीन्स x + y इज लेस देन और इक्वल्स टू 50। नाउ वीड्स कंट्रोल करने के लिए x के लिए 20 लीटर हेर्बिसाइड यूज हो रहा है और y के लिए 10 लीटर्स, दैट मीन्स 20x + 10y। और कितना हम यूज करना है? 800 लीटर्स, इससे ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते। दैट मीन्स 20x + 10y इज लेस देन और इक्वल्स टू 800। So 20x + 10y is less than or equals to 800. And next, land 1x + 1y is less than or equals to 50. Profit 10,500x + 9,000y. So formulate these constraints like this. 20x + 10y is less than or equals to 800. All zeros cancel, that means 2x + y is less than or equals to 80, x + y is less than or equals to 50, and x is greater than or equals to 0, y is greater than or equals to 0. Now draw the graph. By this you can see that boundary points O, that is 0 0, and A point, that is 40 0, B point 30 0। अगर आप इस पॉइंट को निकालने में प्रॉब्लम फील कर रहे हो तो जो हमने 10th क्लास में हम करते थे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके बाय एलिमिनेशन मेथड या बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उस मेथड से हमने x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। और थर्ड है आपका ये C पॉइंट, यानी x0 y50। तो इन चारों पॉइंट्स को आप z में पुट करो। z में पुट करने के बाद जो मैक्सिमम है, प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, डेफिनेटली है। दैट मीन्स जो मैक्सिमम सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है दैट इज इट्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन, दैट इज 495,000। यहाँ पर मैक्सिमम है तो x की हमारे पास कितनी हुई? 30 यूनिट्स, y यानी 20 यूनिट्स। दैट मीन्स क्रॉप x के लिए 30 हेक्टेयर लैंड और क्रॉप y के लिए 20 हेक्टेयर लैंड यूज होगी। इज दिस ओके? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स 2 मॉडल्स A and B ऑफ अ प्रोडक्ट। अब 2 टाइप्स के मॉडल्स हैं। ईच पीस ऑफ मॉडल A रिक्वायर्स 9 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग and 1 labor hour for finishing. Each piece of model B requires 12 labor hours for fabricating and 3 labor hours for finishing. देखो 2 टाइप्स के मॉडल्स हैं A और B और 2 ही टाइप्स के लेबर आवर्स हैं, यानी लेबर आवर 2 टाइप्स के लिए यूज हो रही है, एक फैब्रिकेटिंग के लिए और एक फिनिशिंग करने के लिए। तो 2x2 ऑर्डर की एक टेबल बना लो। फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग मैक्सिमम लेबर आर अवेलेबल आर, मैक्सिमम कितने हैं? फैब्रिकेटिंग के लिए 180 और फिनिशिंग के लिए 30। द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8,000 on each piece of model A and 12,000 on each piece of model B.
How many pieces of model A and model B should be manufactured per week to realize a maximum profit? What is the maximum profit per week? Now, fabricating के लिए model A 9 labor hours and 12 labor hours for model B, and finishing model A 1 labor hour and model B 3 labor hour. और मैक्सिमम लेबर आवर कितने हैं? 180 फैब्रिकेटिंग के लिए और फिनिशिंग के लिए 30, एंड प्रॉफिट है 8000 ऑन मॉडल ए एंड 12000 ऑन मॉडल बी. नाउ फॉर्मुलेट these constraints. So 9x plus 12y मैक्सिमम है, दैट मीन्स इससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते, लेस देन और इक्वल्स टू 180. नाउ 1x plus 3y is less than or equals to 30, and profit function z we have to maximize it, 8000x plus 12000y. And non-negative constraints, that is x is greater than or equals to 0, y is greater than or equals to 0. हमने इसको smallest form में लिख लेना है, यानी 3 मल्टीपल है यहाँ, तो 3x plus 4y is less than or equals to 60. And next है x plus 3y is less than or equals to 30, x is greater than or equals to 0, y is greater than or equals to 0. Now formulate the graph. Very first corner point, that is O यानी 0 0, A that means 20 0, B that is 12 or 6, and C that is 0 and 10. Now maximize. Check where it is maximize. This is 168000 यानी x यूनिट x है 12 और y है आपके पास 6. So model A 12 units and model B that is 6 units. Now thank you. Formulate all the LPP questions from exercise 12.2. यानी आपने constraints और ऑब्जेक्टिव फंक्शन और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस ये हर क्वेश्चन की फॉर्मुलेट करनी है और आपने इसको चेक करवा लेनी है. एंड ग्राफ इवन नंबर क्वेश्चंस का गर्ल्स ने ड्रॉ करके यानी प्रॉपर सॉल्यूशन विद आंसर निकालना है आपने, और ऑड नंबर क्वेश्चंस हैं जो वो बॉयज सॉल्व करेंगे प्रॉपरली. इज दिस ओके? आई थिंक सो. इट्स एन इजी वर्क. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.